میرے ابا بہت بیمار رہتے تھے، سب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ ابا بس چند ہی دن کے مہمان ہیں۔ ہم روز ابا کو ایک نئے ہسپتال لے جاتے اور ڈاکٹر بدل بدل کر چیک اپ کرواتے کہ کوئی ڈاکٹر تو امید دلائے گا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ سب ڈاکٹرز کا ایک ہی جواب ہوتا۔ حیرت تو یہ تھی کہ آج تک کسی کو ابا کی بیماری کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ آج بھی ہم ابا کو ایک نئے ہسپتال لے آئے تھے۔ یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت قابل ہیں۔ ہمارا نمبر آیا تو ہم ابا کو لے کر اندر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلے گئے۔ ابا کو معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو کہ انہی کے ہسپتال کی لیبارٹری سے ہونے تھے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک عجیب بات کر دی۔ وہ کہنے لگی، آپ ان کی شادی کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کی اگلی بات نے تو ہم سب کے پیروں تلے سے جان ہی نکال دی۔ وہ بولی کہ آپ ان کی شادی مجھ سے کر دیں تو یہ چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں تو فٹ سے راضی ہو گئی، مگر مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ خیر 2 دن بعد ہی وہ ڈاکٹرنی ہماری دوسری ماں بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ابا کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ رات کے وقت ابا کی دونوں بیویاں ان کے کمرے میں ہوتی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، اس لیے ایک رات ابا کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اندر تو اماں اور وہ ڈاکٹرنی۔ میری اماں اور ابا کی محبت اور آپس کے اتحاد کی تو پورے محلے میں مثالیں دی جاتی تھی۔ اماں ابا کی بات کو پتھر کی لکیر مانتی تھی تو ابا بھی ہر کام سے پہلے اماں کی کہی ہوئی بات پوری کرتے تھے۔ اگر ابا تیار ہو کر باہر کسی کام سے جا رہے ہوتے اور اماں کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا تو پہلے ابا اماں کا سودا لا کر دیتے اور پھر ہی اپنا کام پورا کرتے تھے۔ اماں کی بھی مجبوری تھی، سارے کام ابا کو ہی کہنے پڑتے تھے کیونکہ ان کی صرف ہم 4 بیٹیاں ہی تھیں اور ہمارا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ میرا نام مہوش ہے، میں اس وقت 10 سال کی تھی اور میری کوئی بہن یا بھائی نہ تھا۔ اماں اکثر بیمار رہتی، اس لیے ڈاکٹر انہیں ہمیشہ ہی مزید بچے پیدا کرنے کے لیے منع کرتی تھی، پر میری ماں کو تو اتنا شوق تھا کہ وہ کہتی رہتی، مہوش کا بھی ایک بھائی ہو، مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مجھے یہاں سے علاج نہیں کروانا، یہ ڈاکٹر تو بچہ پیدا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ تو ابا انہیں سمجھاتے کہ یہ سب تمہاری صحت کے لیے کہتے ہیں، بھلا ان کو ہمارے بچوں سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اماں اکثر ابا کی بات سمجھانے کے بعد رونے بیٹھ جاتی تو ابا انہیں تسلی دیتے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں بیٹا لکھا ہے تو ضرور ہوگا۔ آخر کار کوئی 2-3 سال بعد علاج کروا کر جب اماں کی طبیعت صحیح ہوئی تو ڈاکٹر نے انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس بار اماں بہت خوش تھیں اور پر امید تھیں کہ بیٹا ہی ہوگا۔ کچھ ہی ماہ بعد علاج اور کوششوں سے اماں حاملہ ہو گئی۔ اس وقت میں زیادہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتے تھے، اگر کہیں پر ہوتے بھی تھے تو یہ نہیں بتاتے تھے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ابا ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے، بیٹا ہو یا بیٹی، بس ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہو۔ اماں تو بیٹے کے شوق سے اتنی جنونی ہو گئی تھی کہ کہتی کہ اگر میری جان چلی بھی جائے تو بھلے جائے، لیکن سراج الدین تمہیں ایک بیٹا ضرور دے کر جاؤں گی۔ آخر کار خیر سے بچے کی پیدائش کے دن بھی آ پہنچا۔ اماں کی طبیعت بگڑی تو ابا گھر میں ہی ایک دائی کو لے آئے۔ دائی اماں کے ساتھ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو کہتی آئیں کہ آج اس گھر میں بیٹا پیدا کروا کر ہی جاؤں گی، پر جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ اپنا اترا ہوا چہرہ لے کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو سراج الدین، برا مت ماننا، اس بیوی سے تمہارا بیٹا ہونے سے رہا، میری مانو تو ایک اور شادی کر لو۔ ابو کو اس وقت دائی پر بہت غصہ آیا، لیکن انہوں نے وقت مناسب نہ سمجھا اور دائی کو اپنا معاوضہ دے کر چلتا کیا۔ اماں کو جب بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی تو وہ بہت ہی مایوس ہو گئی اور کافی دیر تک روتی رہی۔ بیٹی کو دودھ پلاتے وقت اس کا چہرہ تک نہ دیکھتی۔ ان کو ایک فکر یہ بھی تھی کہ ان کی اپنی بھی طبیعت خراب رہتی ہے اور پتہ نہیں اس سے آگے ڈاکٹر انہیں بچہ پیدا کرنے کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ رو رو کر ہماری ماں کا برا حال ہو گیا، لیکن ابھی تو ان کی صرف 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہماری منی بالکل چاند جیسی پیدا ہوئی تھی، جو بھی دیکھتا ماشاء اللہ کہتا۔ معصوم اتنی پیاری بچی تو پورے محلے میں کسی کی بھی نہیں تھی، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ بیٹیاں جتنی ہی پیاری اور معصوم کیوں نہ ہو، بیٹوں کا مقابلہ بھلا کہاں کر سکتی ہیں۔ میں کیونکہ بڑی تھی اور اس وقت کچھ سمجھدار بھی ہو گئی تھی، اماں کو یوں دیکھ کر میں بہت مایوس ہو جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اپنے والدین کی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کروں، پھر بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے ابا اور اماں کی یہ خواہش پوری کر دے، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ منی کے بعد اماں کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اب ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کی پیدائش کے وقت
अम्मा और अब्बा काफी उम्र रसीदा हो चुके थे, लेकिन किस्मत में 4 बेटियां लिखी थी तो उन्हें पैदा तो होना ही था। तीनों बहनों की पैदाइश तक मैं जवान हो चुकी थी, क्योंकि अम्मा ने सब बच्चियों के दरमियान 2 से 4 साल का वक्फा रखा था, इसीलिए हमारी उम्रों में बहुत ज्यादा फर्क था। अम्मा अब्बा ने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटियों को पढ़ाया भी था। सबसे छोटी बहन की पैदाइश के वक्त तक अम्मा अब्बा ने मेरी शादी के लिए सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि माँ बाप की खिदमत करूंगी, लेकिन उनको अपने सर से बोझ भी उतारना था। 2 बहनें स्कूल में पढ़ रही थी, एक अभी बहुत छोटी थी। अम्मा ने मोहल्ले की कुछ औरतों को अच्छे रिश्ते देखने का कहा। जल्दी मेरा रिश्ता भी हो गया, जो मेरे अब्बा पर मजीद परेशानी का बाइस बना, क्योंकि अब्बा एक मामूली करियाने की दुकान चलाते थे, जिससे घर का खर्चा भी अल्लाह अल्लाह करके पूरा होता था। शादी की इतनी बड़ी तैयारियां भला कहाँ से होती। मेरे अब्बा ने मेरी शादी के लिए कुछ रिश्तेदारों से मदद ली तो कुछ कर्जा उठाया। क्या करते, आखिर बेटियां पैदा की थी, अब रुखसत भी तो करनी थी। अभी तो 3-3 बेटियों का बोझ बाकी था, लेकिन मेरे अब्बा साबिर शाकिर बने, खामोशी से हर चीज पूरी करते रहे। मैंने बहुत चाहा कि घर में ट्यूशन रख लूं या कोई पार्लर बनाकर या सिलाई का काम सीख लूं, घर में अब्बा की मदद करूं, मगर अम्मा को शादी की जल्दी थी कि हम लोग बीमार रहते हैं, जितना जल्दी हो सके बेटियां अपने घर की हो जाएं। अम्मा ने तो मेरी छोटी बहन के लिए भी रिश्ते देखने के लिए मोहल्ले वाली औरतों को कह दिया था, जबकि वो अभी 14 साल की थी, छोटी बच्ची ही लगती थी। फिर भी अम्मा कहती कि 1 साल बाद उसको भी ब्याह दूंगी। दरअसल मेरी अम्मा को अब्बा का बड़ा एहसास था कि वो बड़ी उम्र के हैं और बेटे का सहारा तक नहीं है। बेटियों की जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी करेंगे तो जिंदगी का कुछ हिस्सा तो सुकून से गुजारेंगे। ये बात उनकी मुझे भी मुनासिब लगती थी, लेकिन आने वाली जिंदगी के लिए खौफजदा भी थी कि मेरा और बहनों का ससुराल न जाने कैसा होगा। अपने पीछे तो हम ऐसे हालात छोड़कर जा रहे थे कि आने वाली जिंदगी में कुछ भी हो जाए। माँ बाप जो पहले ही परेशानियों में घिरे हुए हैं, उन्हें भला क्या बता सकेंगे। मेरे ससुराल वाले शादी के लिए तारीख मांग रहे थे। अम्मा और अब्बा ने उन्हें तारीख दे दी और आखिरकार निकाह वाला दिन भी आ पहुंचा। मैंने दूल्हे को अभी तक नहीं देखा था। मेरी अम्मा ने भी बस तस्वीर देखकर उसकी माँ से मिलकर ही रिश्ता किया था। वो लोग भी हमारी तरह बस सफेद पोश थे, कोई खास खाते पीते घर से नहीं थे। घर में मौजूद टूटा फूटा लिपस्टिक, नेल पॉलिश जो भी मेरी बहनें लेकर आईं और मुझे तैयार किया गया और फिर निकाह पढ़ाया गया। दूल्हे का चेहरा अभी तक सेहरे में ढका हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार चेहरा देख लूं, पर ना तो मैंने और ना ही मेरी बहनों ने अभी तक उसे देखा था। निकाह के बाद खाना हुआ तो उनकी तरफ से आए हुए बाराती ऐसे भागे जैसे खास इसी मकसद के लिए आए हों। खाना खाने के बाद वो लोग मुझे रुखसत करके अपने साथ ले जाने वाले थे। हमारी गरीबों की शादी भी बस सादा सी होती है। मैं कमरे में बैठे इंतजार कर रही थी कि अम्मा मेरे लिए शादी का खाना एक छोटी सी प्लेट में लेकर आ गईं। खाना देखते ही मुझे खुशी से ज्यादा दुख होने लगा कि मेरे अब्बा ने न जाने कैसे इस बिरयानी और कौरमे के लिए पैसे जमा किए होंगे। एक निवाले के साथ मेरे 10-10 आंसू गिर रहे थे। दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि बाप को बेटी का बोझ उतारने के लिए कितने बोझ उठाने पड़ते हैं। सबका खाना हो गया तो अब मेरे रुखसत होने का वक्त था। मेरी सास कमरे में मुझे ले जाने के लिए आई तो उसे देखकर मैं हैरान हुई। कैसे लोग थे, बेटे की शादी करवाने आई थी, न कोई अच्छे कपड़े न ढंग के जूते। वो तो ऐसे लग रही थी जैसे अभी घर का काम बीच में छोड़कर आ गई हूँ। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा तो वो भी मुझसे नजरें ना मिला सकी। और चलो बेटा चलो, तुम्हारे ससुराल वाले सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर अम्मा ने मुझे घूंघट उड़ाते हुए उनके साथ रवाना कर दिया। ससुराल पहुंची तो वहाँ का माहौल देखकर मजीद चौंक गई। घर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था यहाँ कोई शादी या दुल्हन को लाने के लिए तैयारी की गई हो। चाहे जितनी भी गरीब लोग हों, लेकिन अपनी शादी के लिए कुछ तैयारियां और खुशी मनाने के लिए तो हर किसी का ही दिल चाहता है। मुझे दूल्हे के साथ जिस कमरे में लाया गया उसमें सिवाय एक चारपाई के और कोई सामान मौजूद नहीं था। ये सब कुछ करके मुझे ये अंदाजा तो हो गया था ससुराल के हालात तो मेरे मेके से भी खराब थे। कमरे में पहुंचकर दूल्हे ने अपने चेहरे से सेहरा हटाया तो देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये तो बहुत ही बड़ी उम्र का बंदा था। जगह जगह से सफेद बाल और दाढ़ी उसके बूढ़े होने का सबूत दे रही थी। दिल ही दिल में मेरी आह निकली, हाय मेरी किस्मत। जुबान तक एक लफ्ज न आया और आंखों से आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। मैंने अपने दिल में ये सब सोचकर पक्का फैसला कर लिया कि जो हो गया यही किस्मत थी। अब मेके में किसी चीज की कोई शिकायत कभी नहीं करनी। मुझे अपनी माँ के इस फैसले का बहुत दुख था। ना जाने उसको इतनी जल्दी क्या थी। हम सब बहनें तो सबर शुक्र वाली बेटियां थीं, ज्यादा किसी चीज की कोई फरमाइश भी ना करती, रिश्ता तो देखकर अच्छी जगह करती। मेरी अम्मा बस ऐसी ही थी, अपनी मर्जी चलाने वाली। बेटे की चाह में बेटियों की कोई कदर ना करती थी।
मुझसे छोटी बहन के लिए भी अभी रिश्ते ढूंढने ही लगी थी और अब्बा तो हर बात अम्मा की ही मानते थे। ना चाहते हुए भी दिल पर हजार तरह के पत्थर रखकर मैंने शोहर को कबूल कर लिया था। हमेशा की तरह यही सोचा था कि अल्लाह ताला के इस फैसले में कोई न कोई हिकमत जरूर होगी। इस घर में मुझे सारी रात नींद ना आई। पिछले पहर न जाने कब आंख लगी थी और सुबह होते ही हमारे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। घबराकर फौरन उठकर बैठ गई। मेरे शोहर अभी भी ऐसे ही बेखबर सो रहे थे जैसे उसको इस शोर शराबे की रोजाना की आदत हो। 2-3 बार ऐसे दरवाजा बजा तो मैंने उन्हें जगाना ही मुनासिब समझा। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। उसने गुस्से से बेटे को एक तरफ धकेलते हुए बोला कि बहू को बाहर भेजो, दोपहर होने वाली है और तुम सो रहे हो। वो खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा तो मैं खुद ही उठकर सास के पीछे बाहर जाने लगी। तभी सास बोली, आ जाओ बहू आ जाओ, देखो तेरी सास बेचारी अकेले कितने काम करती है। मैं तो कब से तेरे मियाँ को शादी का कहती आ रही थी कि कोई मेरा हाथ बटाने वाली आ जाए, लेकिन इस कमबख्त को कोई रिश्ता ही नहीं देता था। भला हो इस रिश्ते करवाने वाली मासी का जिसने तेरा रिश्ता दिलवा दिया। अब आ जा, ये कल से जमा हुए बर्तन धो, हम दोनों सास बहू मिलकर नाश्ता बना लेंगे। मैंने अपनी शादी की पहले सुबह ही तकरीबन कोई 1 घंटे तक बर्तनों का ढेर धोया। तब तक मैं पसीने से शराबूर हो चुकी थी। अभी तक मैंने रात वाला लाल जोड़ा ही पहना हुआ था। बर्तनों से फारिग हुई तो कमरे में गई जहाँ मेरा शोहर अभी तक दुनिया जहां से बेखबर सो रहा था। मैंने बैग खोला जो अम्मा ने रुखसती के वक्त साथ दिया था। उसमें मेरे पहनने के लिए कपड़े थे। कपड़े निकाले और नहाकर सास के साथ नाश्ता बनाया। अभी तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरी सास के मेरे शोहर के अलावा भी 3 बेटे थे जो सभी अभी तक कंवारे थे। ससुर बहुत बूढ़ा था जो एक कोने में चारपाई पर पड़ा रहता। मैं काम से फारिग हुई तो शोहर का नाश्ता लेकर कमरे में गई, उसे जगाया और नाश्ता करने को कहा तो वो मेरे इस अमल से बहुत खुश हुआ। मैंने अपना फर्ज समझकर उसके खाने पीने का ख्याल रखा। वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगा। अक्सर खाने पीने की कोई चीज मेरे लिए लाता तो घर वालों से छुपा कर लाता, क्योंकि उनके घर का माहौल कुछ ऐसा था कि अपनी या पराई चीज की किसी को कोई तमीज नहीं थी। बस जिसे जो हाथ लग जाए वो उसका होता था। मेरा शोहर कुछ कमाता नहीं था, बस मेरे ससुर की पेंशन महीने में आ जाती थी। घर का खाना पीना उसी में से पूरा होता था। मेरी सास अकेली औरत कितने सारे जवान बेटों का खाना पीना कपड़े वगैरह करती तो घर की सफाई सुथराई उससे ना हो पाती। मैंने जाते ही घर की सफाई सुथराई का ख्याल रखना शुरू किया। चंद ही दिनों में हमारे घर की तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी सास मेरे घर के कामकाज से बहुत खुश होती, लेकिन एक बात थी, वो मुझे और मेरे शोहर को आपस में हंसता बोलता बर्दाश्त ना कर पाती। ऐसा लगता कि उसे बहू सिर्फ घर के कामों के लिए चाहिए थी, बेटे के लिए नहीं। लेकिन मैं हमेशा ही अपना अव्वलीन फर्ज अपने शोहर की जिम्मेदारियां और उसकी खुशी का ख्याल रखने को समझती। इसीलिए मेरी सास की अक्सर मुझसे नोक झोंक चलती रहती थी। सास को हमेशा यही फिक्र होती कि तेरा शोहर कुछ कमाता तो है नहीं, बस तो उसकी इतनी फिक्र ना किया कर, बस घर के कामों में ध्यान दे। अगर कभी मैं सास की बात मान भी लेती तो शोहर नाराज हो जाता। माँ बेटे की इस अनबन में मैं ना यहाँ की रहती ना वहाँ की। इस बात की वजह से मेरी सास अब मुझसे बिगड़ने लगी थी। अक्सर मेरे शोहर के कान भरती, आखिर वो माँ थी। मेरा शोहर भी उसकी बात मान लेता और मुझसे लड़ता था। शोहर की बेरोजगारी देखकर मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अब्बा के घर तो मैं ये ना कर सकी, लेकिन चुपचाप करके बैठ जाना मेरी आदत नहीं थी। इस इलाके के सभी लोग गरीब भी थे, कोई ज्यादा फीस नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने कम फीस लेकर भी पढ़ाना जारी रखा। जैसे ही मुझे महीने की फीस जमा हो जाती, शोर तरह तरह के हीले बहाने बनाकर मुझसे सारे पैसे निकलवा लेता। अब सास भी घर के खर्च में मुझसे हिस्सा मांगने लगी। भला इतने पैसे कहाँ जमा होते थे कि मैं घर का खर्चा और शोहर को पैसे देना दोनों कर सकूं। अभी मेरी जिंदगी इन्हीं सब उलझनों से गुजर ही रही थी कि मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होने लगी तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन अब आए दिन शोहर के झगड़े होते कि पैसे दो, मैं कहती कि पैसे तो ट्यूशन पढ़ाने से आते थे और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, तो पैसे कहाँ से लाऊं। तो वो झगड़ने लगता और कहता कि कुछ भी करो, मेहनत करो, लेकिन मुझे पैसे दिया करो। इस हालत में मेहनत मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन दिन ब दिन शोहर के झगड़े मजीद बढ़ते गए। पैसों की बात को लेकर एक दिन शोहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि बच्चा पेट में था, इसलिए तकलीफ से तड़पने लगी। उन लोगों को जब ऐसा लगा कि मुझे इलाज की जरूरत है, मुझे अपने अब्बा के घर छोड़ाए। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तकलीफ कुछ इतनी ज्यादा थी कि मुझसे मना करने की ताकत बाकी नहीं थी। मेरी हालत पर अम्मा और बाबा बहुत परेशान हो गए। फौरन मुझे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत ज्यादा मारपीट की वजह से
डॉक्टर मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए। मुझे इस बात का बहुत सदमा लगा। मैं बहुत ज्यादा रोई, लेकिन घर से कोई पूछने तक ना आया, जबकि उनको बच्चा जाया हो जाने की खबर भी मिली थी। वो लोग साथ रहने के लायक तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब इस बात की वजह से मुझे अपने शौहर से शदीद नफरत होने लगी थी। बाप ने भी ये कहकर रोक लिया कि जब तक वो लेने नहीं आता तो वापस नहीं जाएगी, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी वो ना आया। मेके आई तो एक और बात पता चला कि अम्मा ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी ऐसे ही बिना देखे कर दिया है। मैंने इस बात पर शदीद एहतजाज किया और अब्बा को भी समझाया कि रिश्ता देखभाल कर ही करना चाहिए। जब मेरी छोटी बहन ने मेरी हालत देखी तो वो भी डर गई और रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि ये रिश्ता भी उसी रिश्ते करवाने वाली मासी ने करवाया था। उसको मना कर दिया और बताया कि हम खुद कहीं देखभाल कर रिश्ता करेंगे। अम्मा मेरी इस बात से शदीद गुस्सा हुई और जैसे तैसे करके मुझे घर वापस भेजने की कोशिश करने लगी। इस बात को लेकर हमारे घर में मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। तंगदस्ती, गुर्बत और अब्बा पर मेरी शादी की वजह से लिया हुआ कर्जा तो पहले ही था। अब्बा पर परेशानियों का बोझ बढ़ा तो वो शदीद बीमार हो गए। घर में हम सब लड़कियां बड़ी मुश्किल से अब्बा को अस्पताल तक ले गई। अब्बा का वहाँ कुछ इलाज हुआ, मगर तबीयत ना संभली। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल परेशानी से दूर रहने का कहा। अब्बा जो करियाने की दुकान चलाते थे, उसी से हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी। अब्बा बीमार हुए तो घर में फाके पड़ने लगे। ये देखकर मैंने यहाँ पर भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मुझसे बहुत ज्यादा ना होता, फिर भी खाने और राशन का इंतजाम हो जाता था। मुझे बेटों की तरह अब्बा की खिदमत करने का बहुत शौक था। ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बाप की मदद इस तरह से करूंगी। अब्बा की तबीयत बहुत नाजुक थी। मेरी अम्मा को अभी भी बेटे का शौक था। अब्बा दिन ब दिन बीमार हो रहे थे। बहुत से डॉक्टर जवाब दे चुके थे। आज हम एक नई डॉक्टर के पास अब्बा को लेकर गए थे। वो एक लेडी डॉक्टर थी, बहुत अच्छी और नेक खातून थी। अब्बा की बहुत सारी दवाइयाँ भी हमें फ्री दे देती थी, मगर अब्बा की हालत खराब होती जा रही थी। लगता था अब वो जिंदा नहीं रहेंगे। एक बार हम अब्बा का चेकअप करवाने उनके पास गए तो वो बोली, आप उनकी शादी कर दें, मुझे लगता है शादी के बाद ये ठीक हो जाएंगे। और ये भी कह दिया कि मैं ही उनसे शादी करूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया था। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था? अब्बा भला इतने बूढ़े इंसान और वो लेडी डॉक्टर कोई ज्यादा उम्र की नहीं थी। हैरत तो तब हुई जब अम्मा ने भी उनकी बात मान ली और अब्बा की शादी उनसे करने के लिए राजी हो गई। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि वो खुद ही अब्बा से शादी के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर अम्मा तो बहुत खुश हो गई थी। अम्मा दुनिया की एक ऐसी वाहिद पागल खातून थी जो खुद ही अपने लिए सौतन लाना चाहती थी। अम्मा राजी हुई तो भला हम क्या कर सकते थे? और अब्बा पहले ही अम्मा की कोई बात नहीं टालते थे, वो भला शादी के लिए कैसे मना कर सकते थे? लेकिन हम सब बहनों के ना चाहते हुए भी अब्बा का उस डॉक्टर साहिबा से निकाह हो गया और वो हमारी सौतेली माँ बनकर हमारे घर आ गई। सौतेली माँ के आते ही हमारे घर के तो रंग ढंग ही बदल गए। वो अब्बा का खुद इलाज करती और बहुत ख्याल रखने लगी। जल्दी अब्बा सेहतमंद होने लगे। सौतेली माँ ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह और बहुत ही अमीर लोगों में करवा दिया और अब वो मेरे अपने शोहर से तलाक करवाने की कोशिश में लगी हुई थी। जल्दी उनकी कोशिश कामयाब हुई और मेरी उन बुरे लोगों से जान छूट गई। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी भी दिलवा दी और वो खुद अपने पैसों से हमारे घर का बहुत सारा खर्चा उठाती थी। देखते ही देखते बाबा बिल्कुल अच्छे भले हो गए और वो वापस अपने किराने की दुकान संभालने लगे। माशाअल्लाह, अब हमें पैसों के किसी भी मामले में कोई भी टेंशन नहीं होती थी। हमारी सौतेली माँ बहुत अच्छी थी। एक दिन ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि आप एक डॉक्टर होकर हमारे घर शादी करके क्यों आई? आप चाहती बहुत अच्छी जगह भी शादी कर सकती थी। तब उन्होंने बताया कि मैं पहले से शादीशुदा थी और खुद मेरी 2 बेटियां भी थी, लेकिन एक कार हादसे में मैंने अपने शोहर और दोनों बेटियों को खो दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बच चुकी थी। तब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी तमाम जिंदगी किसी नेकी और भलाई के काम में वक्फ कर दूंगी और आपके अब्बा से शादी करके मैं एक नेक काम ही करना चाहती थी, क्योंकि आपके अब्बा को कोई जिस्मानी बीमारी नहीं थी। उन्होंने बस घर की परेशानियों को खुद पर हैवी कर लिया था और डिप्रेशन में चले गए थे और इस हद तक चले गए थे कि इससे उनकी जान भी जा सकती थी। मैं आप लोगों को देखती तो मुझे आप पर बहुत तरस आता। मेरा आगे पीछे कोई ना था, इसलिए मैं आपके घर का बोझ उठाना चाहती थी और किसी बेसहारा को बेटे का सहारा भी देना चाहती थी। मेरे पास जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं था। आप लोगों की जिम्मेदारियां उठाकर मैंने अपनी जिंदगी को बामकसद बना लिया। अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि जल्दी मेरी सौतेली माँ हामला भी हो गई। अम्मा तो ये सब देखकर खुशी से फूले ना समाती थी। इस बार उन्हें पूरा यकीन और उम्मीद थी कि बेटा ही होगा और आखिरकार उनकी ये उम्मीद अल्लाह ताला ने पूरी की। हमारी सौतेली माँ ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया तो अब्बा की भी खुशी देखने के लायक थी।
उन्हें बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी थी। हमारा भाई हम सब बहनों की आंखों का तारा था। आहिस्ता आहिस्ता हमारा भाई बड़ा होने लगा और उसके साथ हमारी जुड़ी हुई उम्मीदें भी जैसे पूरी होने लगी थी। सुतेली माँ मेरे लिए भी एक शानदार रिश्ता लाई थी। इतने अच्छे और खाते पीते लोग थे। रिश्ता तय हुआ तो इस बार मेरी शादी के तमाम अखराजात दूल्हे वालों ने उठाए थे। बहुत ही अच्छे तरीके और धूमधाम से वो मेरे घर बारात लाए और मैं ब्याह कर अपने ससुराल गई। मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। यहाँ मैं जब उम्मीद से हुई तो सब घर वालों ने मुझे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। मेके की तरफ से भी अब मैं बेफिक्र थी। वो लोग बहुत ज्यादा खुशहाल थे। अल्लाह भला करे हमारी सुतेली माँ का, जिसने आकर हमारे दुखों को सुखों में बदला था। आज जब भी मैं ये सोचती हूँ कि अम्मा ने कितना दुरुस्त फैसला किया अब्बा की दूसरी शादी करवा के, तो उनके लिए बस दिल से दुआएं निकलती हैं